we are practicing on first situation, which is our routine activities. So today we will talk about only third person. When you talk about third person, guys, so we have two things in third person. One is called singular and second is plural. Okay, it means third person singular, third person plural. How? Let me tell you. See, suppose there are two people. Okay, if these two people are having a conversation, whoever speaks first, suppose this guy is gonna say something, so this guy is called first person. He is speaking something, he is first person. The person in front of this guy will respond, so this person is called second person. So we have first person, second person. Now, if they both are talking about someone, if they are talking about a girl, here there is a girl, and this girl is alone, they are talking about only one girl. Though this girl is a third person, but she is only one, so she will be called singular. Third person singular. If they are talking about one more girl at the same time, means they are talking about two girls. So now they both are third person, but now they are not singular, they are plural. In your daily conversation, you come across many situations when you suddenly start talking about your parents. Okay, so if you are addressing your parents, so parents is a folder containing mom and dad. It means ultimately you're talking about two people. So if you say my parents get up or gets up, you have to decide, because if you say my parents, so your parents come in which category? Plural category. So you will have to use plural structure for it. But you start talking about only mother or maybe only father. When you say, my mother, if you say my mother, so mother comes in which category? Singular Singular. category. So you have to think before you speak whether you are going to address third person singular or third person plural. Though in both the cases they are third person, but singular plural matters a lot. So this is what we are going to talk about. So let's get started. Fine. So now if you talk about singular, let's talk about third person singular only. Third person singular. So if there is a guy, you can give him a pronoun which is he. If there is a girl, she. And if there is any item, it could be like mobile, it could be computer, it means non-living things, you can say It. it. If it is any animal, you can also say it. Suppose there is a dog. Let's take an example. If there is a dog, I don't know how to make dog. Suppose there is a dog. Okay. So now we are talking about this dog. Suppose two people are talking about one dog. So first person, second person are already available here. Okay. They are addressing this dog. If this dog is alone, so this dog is third person singular. Now if you first time you introduce the dog, you would say, this dog, that dog, you can introduce like this. But if you want to give it a pronoun, so what will you say? Will you say he or you will say it?
Okay. So generally grammar says that you can call it it. You can say it. First you say, no, this dog is disturbing me, it is barking. But here, I mean, if you talk about this modern English, I observe every day that people are calling he to the dog. यस सर सर मैंने कहीं पढ़ा था कि पालतू जानवर के लिए ही और शी यूज कर Yeah. सकते हैं. So this is called personification. You know, they treat कि ये तो मेरा ही है, मेरे घर का member है, something like that. एक emotion they connect. So they start saying he, she. Like if there is a cow, you say कि she has two horns or she has a long tail. So this is happening these days. Though grammar says that you can call it it. कोई सांप है, if there is a snake. अब आपको क्या पता सांप है कि सांपनी है, you don't know whether that is he or she. You can call it it. Okay. मक्खी है कि मक्खा है, you don't know. So you can call it it. So इस तरीके से है. Anyways, but you already know कि जो निर्जीव आइटम है you will call it it. जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो तो it है ही. बाकी जो जानवर है यू कैन कॉल इट इट, लेकिन आप चाहें तो ही शी भी कहते हैं. कुत्ते को भी कह दिया, हाथी को भी ही कह दिया. इट हैपेंस. एनीवेज, जो बच्चा है, पता नहीं कि बच्चा मेल है या फीमेल है, उसको भी इट कह देंगे. यू नो इट इज क्राइंग, ऐसा भी ग्रामर कहता है. सो ही शी इट, दिस इज सिंगुलर. नाउ यू कैन टेक एनी नेम. It could be Ram, Sohan, that is singular. Okay. Or if the person belongs to you, then you can say my, and you can say your relation, like my son. Okay. You can say your daughter. You can say his wife. You can say her husband. And it could be our son. Suppose husband, wife, and they are talking about their son, so they can say our son. You can say their son, like this. It means there are two people. Two people are standing there and they are husband wife. Suppose I can say like this. If there are two people, there is a lady and there is a guy, and they have a son. They have a son. And if I am talking about this son, but this son belongs to them, so we can say their son. In Hindi, इनका बेटा. So if I have to say यार इनका बेटा यहाँ आता है, इनका उनका whatever you say, नज़दीक में है तो इनका, दूर है तो उनका, but there is there. आप इनको there बोलोगे कि यार इनका बेटा मुझे परेशान करता है. So इनका बेटा it means their son, like this. हमारा बेटा, अगर ये दोनों बात करें, हमारा बेटा अंग्रेजी में बात करता है तो ये बोलेंगे आर सन. आर सन. इधर से मैटर नहीं कि इधर एक है या दो है, मैटर ये करता है ये अकेला होना चाहिए. देख रहे, इधर अकेला होना चाहिए. ये डॉटर, ये वाइफ, ये अकेला होगा तभी कहलाएगा सिंगुलर. समझ में आ रहा है? तनिक बोल दीजिए हाँ. Yes, sir. यस सर. Fair enough. Fine. So now the structure for this third person singular is, if you talk about positive sentence. Positive sentence. So you can talk about any subject, doesn't matter. After subject you have to use verb, and with verb you have to use either s or es. Once you write something, you have to think as per the spelling whether s suits or es suits, and then the object. But when you speak in English, that time you have to think of a sound like s, s, this kind of sound. You can say comes, goes, drinks, smokes. Doesn't matter. You're adding s or es. When suppose there is a person who doesn't know how to write, yet the person can speak in English, so that person will only catch the sound. That यार मैं जाता हूँ I go, लेकिन मेरी मम्मी जाती है तो my mother goes. So he should know the difference कि कभी go है और कभी क्या हो जाएगा, goes हो जाएगा. तो ये difference बोलने में. जो लोग लिखते हैं वो स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं कि अच्छा, अगर जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा एक्शन है, अगर उस एक्शन के लास्ट में ओ आ जाएगा तो हम लगा देंगे ई एस.
जैसे अगर गो आ गया तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो Goes. जाएगा। अगर गोज। वर्ब के लास्ट में आ जाए सी एच तो हम लगा देंगे ई एस। जैसे कि टीच आ गया तो हम कर देंगे टीचेस। ऐसे उनको ख्याल रखना पड़ता है लिखने वालों को। वर्ब के लास्ट में अगर आ जाए एस एच ई एस लगा देंगे। जैसे कि वॉश, वॉश का हो जाएगा वॉशेस। ओके। और डबल एस भी आ सकता है, करके देखते हैं। डबल एस आ जाए तो भी आप ई एस लगा देंगे। जैसे पास, इम्प्रेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे तो आप पासेस कर सकते हैं। लास्ट में एक्स आ जाए तो आप ई एस लगाएंगे। एक्स वाला कोई, जैसे एक वैक्स तो सबको याद रहता है, वैक्स मतलब होता है छेड़छाड़ करना, परेशान करना, तो वैक्सेस आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ पर आप वाई हटा कर के आई ई एस लगाएंगे। जैसे स्टडी है, अब स्टडी में क्या करना पड़ेगा, IES. हाँ अब हमें ऐसे करना होगा, स्टडीज करना होगा। वरी हो जाए तो Worry. वरीज करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है खुद ही पता चल जाता है स्पेलिंग देख करके, इतनी आदत तो सबको होती है। Texas. कौन सा? Texas. Texas. Tex means. हाँ हाँ, आपकी आवाज़ रिपीट हो रही, ठीक है वही है, सेम ये स्पेलिंग है। कुछ भी ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज़ रिपीट हो रही। तो अब हमें स्ट्रक्चर पता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी थर्ड पर्सन। सपोज here there is a girl, गाइज ये थ्योरी क्लास है। ये वीडियो तो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, जिनको ऐतराज़ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं सर, यू कैन अपलोड। क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें क्या हो जाएगा। यस सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Yeah, and we can figure out our mistake also, sir. यस यस, फाइन। अब ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जब भी दो लोग बात करेंगे, जो सबसे पहले मुंह खोलेगा आपको पता है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन। जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा वो सेकंड पर्सन है। अब ये बात कर रहे हैं, अब बात करते करते ये बात करने लगे। मान लो ये लड़की है और इस लड़की की माँ है। अब उस लड़की की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये लड़का अगर सिर्फ कोई सवाल पूछे तो कैसे होगा, और ये लड़की बिना सवाल पूछे सिर्फ अपने मन से बताए तो कैसे होगा। तो अगर सिर्फ अपने मन से बताए तो वही पॉजिटिव सेंटेंस होगा। जैसे ये लड़की बोल सकती है कि मेरी मम्मी रोज 6 बजे उठती है। अगर ऐसा इसको बोलना हो तो ये सीधा माई से उसको एड्रेस करेगी, क्योंकि मम्मी इसकी है तो माई मदर। अब उठती है, दो तरीके, एक तो बिल्कुल बिस्तर पे आंखें खुल जाए वो तो वेकअप होता है, सबको पता है। लेकिन अगर बिस्तर छोड़ कर उठ जाए उसको बोलते हैं गेट अप। तो हमें इस गेट में एस लगाना है। माई मदर गेट्स अप, मान लो 6 बजे उठती है तो एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। जिनको इतना लंबा नहीं बोलना है वो इसकी जगह खाली 6 AM भी कह सकते हैं। माई मदर गेट्स अप एट 6 AM, ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये बोले कि मेरी माँ चाय बनाती है, तो अब बार बार माई मदर ना बोल करके एक प्रोनाउन क्या हो जाएगा उसके लिए, शी हो जाएगा, कि शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। ऐसा बोलना हो कि वो रोज अपनी सहेली के साथ पार्क जाती है, तो शी, अब गो का हमें गोज करना होगा। शी गोज टू पार्क विद हर फ्रेंड, डेली, रोज जाती है। तो इस तरीके से आप रूटीन बता सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस सीखने के बाद। अब रूटीन के अंदर आप रोज के 50 सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं कि सामने वाला क्या करता है, वो सब कुछ आप बता सकते हैं। तो एक तो ये आपका हो गया। अब दूसरा है सवाल जवाब।
अब सवाल जवाब कैसे होगा, उसमें आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब आ जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अभी सीधा काम करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन पे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड कॉन्वर्सेशन अबाउट थर्ड पर्सन। कम टू द न्यू पेज। कॉन्वर्सेशन अबाउट अ थर्ड पर्सन, सिंगुलर के बारे में अभी हम बात करेंगे, प्लूरल नहीं। जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन में सबसे जो पहला राउंड होता है उसे हम कहते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, और जो दूसरा राउंड होता है वो होता है हाउ टू रिप्लाई। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस जो है, ये दो तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है, इसको हम कहते हैं येस नो क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। येस नो क्वेश्चन में जब आप डेली रूटीन की बात करते हैं, वो भी थर्ड पर्सन के बारे में, तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है, वो है डज। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आप डज सबसे पहले लगाएंगे। डजंट मैटर कि हिंदी में आप क्या सोचते हैं, ये अंग्रेजों का एक स्टाइल है कि आपको डज लगाना है। उसके बाद आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर माई मदर, योर मदर, कुछ भी हो सकता है, आवर सन, देयर सन, डजंट मैटर। बंदा इकलौता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट होना चाहिए कितना, एक ही होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद जब आप वर्ब लगाएंगे, आप एस या एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर उस लड़के ने पूछा कि अच्छा यार क्या तुम्हारी मम्मी चाय बनाती है, अब वो कैसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा ना कि डज योर मदर मेक टी। अब उसका जवाब देख लीजिए, जवाब आएगा कि हाँ मेरी माँ चाय बनाती है, यस माई मदर। अब यहाँ मेक्स टी। यहीं पर आप लोग शुरू में याद है बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे थे, एस नहीं लगा रहे थे। इसका आपको ख्याल रखना, ये हाईलाइट होना चाहिए। सवाल पूछेंगे, एस यस नहीं लगेगा, लेकिन जवाब देंगे हाँ में, पॉजिटिव में जब जवाब देंगे पक्का लगेगा। ये आपने नहीं लगाया तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी खराब, सब खराब। एक अंग्रेजी गलत, सब खराब। नो माई मदर। अब नेगेटिव में हमें क्या करना है, एक कॉमन सेंस बताता हूं। अगर कोई डज से सवाल करे तो आपको डज में नॉट लगा देना है। कोई डू से सवाल करे तो डू में नॉट लगा देना है। तो मैं डज में नॉट लगाऊंगा तो उसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, डजंट। क्लियर है ना, डजंट। अब जैसे आप डजंट बोलेंगे, मेक हो जाएगा, मेक्स नहीं होगा। माई मदर डजंट मेक टी। यही स्विच करना आपको आना चाहिए। सवाल पूछा, एस यस नहीं है, हाँ बोला है, ना बोला फिर नहीं है। ये स्विचिंग आपको बस सीखना है। अलग अलग, अब मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो स्ट्रक्चर आपका यह है नेगेटिव में कि सब्जेक्ट है, आप डज के साथ लगाते हैं नॉट, जिसको हम शॉर्ट कर दें तो बन जाता है डजंट। इसके बाद वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर बहुत सारे हम सवाल करके देखते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन है कि क्या वह लड़का तुम्हें डिस्टर्ब करता है, क्या वह लड़का, डज दैट डिस्टर्ब यू। हाँ वह लड़का मुझे डिस्टर्ब करता है, यस disturbs me। नहीं, वो नहीं करता है, नो। He doesn't disturb. हम उसे ही कह सकते हैं, he doesn't। अब बताओ डिस्टर्ब या डिस्टर्ब्स, Disturb. हाँ जी, he doesn't disturb me। इस तरीके से हो गया। अगर बोलना है कि क्या वह तुम्हारे बारे में सोचता है, डज ही थिंक अबाउट यू। हाँ वो मेरे बारे में सोचता है, यस ही Thinks about. थिंक्स अबाउट मी। नहीं वो मेरे बारे में नहीं सोचता है, He doesn't. नो ही डजंट थिंक अबाउट मी। ये हो गया। तो जब हम येस नो में बात कर लेते हैं, ऑडियो ऑफ कीजिए, रिपीट हो रही मेरी आवाज़, या तो आप ईयरफोन निकाल लीजिए जिनके यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। ये करने के बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो है टू नो द डिटेल्स। आप डिटेल्स जानना चाहते हैं कि सामने वाला, मतलब पूरी उसकी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं। तो डिटेल जानने के लिए
आपको एक लिस्ट आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड WH फैमिली। अब WH फैमिली में तमाम होते हैं, आपको पता ही है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना होगा। मैं लिख देता हूँ WH वर्ड। इसके बाद फिर आपको थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको डज लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, जो कि हमेशा क्या होगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे आपने पूछा कि वह लड़का तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करता है, तो क्यों की इंग्लिश आपको पहले लिखनी है वाई, फिर लगा देना है डज, That दैट boy बॉय disturbed you. डिस्टर्ब यू। अब यहाँ आंसर कुछ भी हो सकता है। हम कह सकते हैं वो मुझे डिस्टर्ब करता है, ही डिस्टर्ब्स मी, क्योंकि Disturbs me. वो मुझसे बात करना चाहता है, बिकॉज ही वांट्स टू टॉक टू मी। इतना लंबा भी हो सकता है आंसर। ऐसे भी हो सकता है वो मुझे डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो पागल है तो क्या होगा कि ही डिस्टर्ब्स मी बिकॉज ही इज मैड। तो इस वाई का आंसर का कोई भरोसा नहीं कि आप आंसर क्या देंगे, वो रीजन जैसा होगा वैसा आपको आंसर देना होगा। अब अगर पूछना है वो लड़का कहाँ रहता है, तो कहाँ की इंग्लिश आनी चाहिए, Where वेयर। does that ही लगा boy सकते, live? वेयर डज ही लिव। जैसे हम बार बार उसे दैट बॉय नहीं बोलेंगे, दैट बॉय एक बार इशारा कर लिया, अब बार बार बोलना है तो ही बोलेंगे, वेयर डज ही लिव। अब इसका आंसर आप लोकेशन बताएंगे कि ही लिव्स। Live in अब मान लो कि वो श्वेता के घर के पास रहता है, ही लिव्स इन near पुणे। Satan. ओके, Okay. ही लिव्स इन पुणे, तो ऐसा हो सकता है। अब है कि भाई वो किसके साथ रहता है, किसके साथ की इंग्लिश आनी चाहिए, विद whom Does does he he live? live। Live. अब अगर बोलना है कि यार वो अकेले रहता है तो क्या होगा, He lives He lives alone. alone. ही लिव्स अलोन। और अगर वो फैमिली के साथ रहता है तो ही लिव्स He lives विद with His his family. family. फैमिली। अपनी वाइफ के साथ रहता है तो ही लिव्स with his wife। करना पड़ेगा। तो अब ऐसे तमाम WH है, वो हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे। वैसे फिर भी अगर बात करें तो जो कॉमन यूज़ होते हैं, एक तो हो गया कब, कब, उसके बाद क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार। ये हाउ ऑफन भी यूज होता है, मतलब अक्सर कब, हाउ ऑफन। ओके, इसके अलावा और क्या यूज हो सकता है, हाउ मच यूज हो सकता है, हाउ मेनी यूज हो सकता है, Until when? कब तक, until when। ओके, विच भी यूज हो सकता है, कौन सा, या विच टाइप ऑफ भी यूज कर सकते हैं, हु यूज हो सकता है, whom यूज हो सकता है, अबाउट whom। ओके, हाउ लॉन्ग भी हो सकता है, कब तक, Whose. whose, करेक्ट। कई बार ऐसे भी यूज होता है व्हाट एल्स, कभी सुना होगा व्हाट एल्स, या व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। तो From when? हाँ, फ्रॉम वेयर है, फ्रॉम वेयर ये भी हो सकता है। अब जब ये यूज होगा तो कुछ जो मेन है, जहां पर जो आपका डज है वो थोड़ा सा दूर भाग जाएगा, वो मैं करा देता हूँ। एक जगह तो लगेगा ही नहीं जैसे कि हम हु की बात करते हैं। अब मैंने एक सवाल पूछा, यार तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है, ऐसे कि तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है। तो जब भी हु से सवाल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हु के बाद डायरेक्ट आप लगाएं वर्ब, उसमें लगा दें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसे बनेगा हु टीचेज यू इंग्लिश। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हु डज टीच यू, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग।
यानी कि इससे ये पता चला कि हम हु के बाद डज या डू नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं? जब वो डज हेल्पिंग वर्ब होता है। एक और सवाल है, तुम्हारी मदद कौन करता है? तुम्हारी You. मदद कौन करता है? हम बोलेंगे कि भाई हु हेल्प्स यू। ठीक है, तो हमने कोई डज नहीं लगाया। लेकिन आपको इतना तो पता है कि डू अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डू मतलब डू एक मेन वर्ब भी होता है, और डू का मतलब होता है करना, मालूम है? तो अगर तो डू अगर मेरा मेन वर्ब है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म डज। डच। अब मैं बोलूं कि इस काम को कौन करता है, तो इसकी इंग्लिश पता है क्या होगा? हु Who does? डज वर्क। Does. तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि अरे सर आपने कहा था डज नहीं लगता, आपने तो लगा दिया। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे कौन पढ़ाता है को हम हु टीचेज बोलते हैं ना, हु टीचेज, उसी तरीके से कौन करता है तो करने की इंग्लिश है ये। करने का डू होता है तो हमें डू में ईएस लगा रहे, डज कर रहे। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे कौन सोता है तो हम क्या बोलते हैं? कौन सोता है? हु स्लीप्स, हु स्लीप्स होगा। कौन रहता है? हु लिव्स। तो इसका आप ख्याल रखेंगे। तो एक तो हु से आपको ये आपको ध्यान देना है कि हु के बाद डज नहीं आएगा। एक है हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद आप क्या क्या लगा सकते हैं? जैसे कितने लोग तो आप क्या कहते हैं? हाउ मेनी पीपल। कितने लड़के? हाउ मेनी बॉयज। कितनी लड़कियां? हाउ मेनी गर्ल्स। अब अगर सवाल ऐसा हो कि तुम्हें कितने लड़के पसंद करते हैं। अब मैं ये सवाल करूं How many boys do you like? तो अब How many boys? How many boys like you? हाँ जी, तो इसमें हम डू डज नहीं लगा सकते, इसको आप रट लीजिए। इसमें ख्याल बस ये रखना है कि कितने लड़के तुम्हें पसंद करते हैं, यानी कि चित्र बना के आपको बताऊं, यहाँ एक लड़की है, ओके, एक मिनट, चित्र सही नहीं बना, ठीक है। मान लो यहाँ एक लड़की है। अब इस लड़की को कुछ लड़के पसंद करते हैं। यहाँ पर लड़का नंबर 1 है, ये भी पसंद करता है। यहाँ दूसरा है, ये भी पसंद करता है। यहाँ तीसरा है, ये भी पसंद करता है। ऐसे मोहल्ले के सारे लड़के इसको पसंद करते हैं, देख रहे हो, सब पसंद करते हैं। तो यहाँ से किसी ने सवाल पूछा कि अच्छा प्रिया एक बात बताओ कि तुम्हें कितने लड़के पसंद करते हैं। अगर ये सवाल है, वो सवाल कैसे होगा? ओके, किसी का नाम प्रिया हो तो भाई बुरा मत मानिए, ऐसे नाम ले रहा हूँ मैं। तो तुम्हें कितने लड़के पसंद करते, तो हम सवाल ऐसे बोलेंगे कि हाउ मेनी बॉयज। हो गया। अब सीधा पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है? लाइक होती है। तो हमें यहाँ पर लाइक्स नहीं बोलना है, क्योंकि हमने पहले ही बॉयज कह दिया, यहाँ प्लूरल कह दिया ना, तो हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे। हाउ मेनी बॉयज लाइक यू। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। जैसे अगर मैं बोलूँ, मान लो कि हर संडे श्वेता के घर में कुछ मेहमान आते हैं। अब मैं बोलूँ यार कितने लोग तुम्हारे घर में आते हैं, कितने लोग आते हैं आपके घर में हर संडे? तो हाउ मेनी पीपल कम टू योर हाउस ऑन एवरी संडे। तो यहाँ मैं कम्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीपल तो ज्यादा होते हैं ना, इसलिए मुझे नहीं लगाना है। तो आप इसका ख्याल रखिए। तो ये हाउ मेनी वाले में ना हमेशा पीपल बॉयज करके आएगा, तो इधर एस नहीं लगेगा। जैसे कुछ ऐसा सोचो कि इस पे कोई सेंटेंस सोचो, कितने लोग तुम्हारे साथ हाउ अंग्रेजी मेनी बॉयज गो टू बार। ठीक है, मान लो तुम्हारे साथ कितने लड़के पार्क जाते हैं, अगर ऐसा बोलना हो तो हाउ मेनी बॉयज गो टू पार्क विद यू, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है,
We can use like this. How many times do you have drink देखो milk? एक्चुअली So हाउ मेनी टाइम्स ये नहीं है। different. Okay. इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो यू है ना, ये यू हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ये है। और हमें सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, हमें नहीं पता कि 10 है कि 15 है, तो हम सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं कि जब हम ऐसा सवाल करेंगे तो बदले में जवाब में क्या आएगा? 10 बॉयज, ऐसा आएगा ना। हमारा सवाल है हाउ मेनी बॉयज, तो हाउ मेनी बॉयज गो टू पार्क विद यू, तुम्हारे साथ कौन पार्क जाता है। यानी कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम सब्जेक्ट नहीं हो। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें कौन परेशान करता है, तो तुम तो बेचारे परेशान होते हो, करने वाला तो कोई और है ना। तो इसमें आपको डू डज नहीं लगाना। मैं अभी आपको एग्जांपल और देता हूँ, समझ में आएगा। देखिए Many students. अगर मैं सवाल थोड़ा सा बदल दूं, मैं ऐसे कर दूं कि तुम कितने लड़कों को पसंद करती हो। अब पता है क्या हो जाएगा? पसंद करने वाला आप बताओ, लड़के हैं कि ये लड़की है? ये तुम है, कौन है? सोचिए। लड़के जी नहीं, लड़के से लड़के से जी लड़की. नहीं, पसंद करने वाला ये है, ये है। ये बेचारे लड़के जो है ना, ये पसंद नहीं कर रहे हैं। ये लड़की इन लड़कों को पसंद करती है, लेकिन ये 1000 को करती है कि 5000 को, हमें नहीं पता। देख लीजिए, फिर से देखिए। यहाँ एक लड़की, इस बार नाम नहीं लूंगा इसका, ओके। यहाँ ये लड़की है, ये लड़की इसको भी पसंद करती है, ये राम को पसंद करती है, ये लड़की सोहन को भी पसंद करती है, इधर एक केशव को भी पसंद करती है, ये राघव को भी पसंद करती है, ये चिंटू को भी पसंद करती है, ये पिंटू को भी करती है। तो बताओ करने वाली ये लड़की है कि ये लड़के हैं? खुद देख लीजिए। सब्जेक्ट कौन है? लड़के से अरे लड़की है भाई, क्या नहीं दिख रहा है? लड़की पसंद कर रही है कि लड़का कर रहा है? साफ दिख रहा है यार। लड़की लड़की लड़की, ये तीर नहीं देख रहे हो? इसकी तरफ से कहीं बाहर जा रहा है तीर, ये कर रही है। तो लड़की सब्जेक्ट है। तो जब लड़की सब्जेक्ट है और ये जो लड़के हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये पसंद करती है, करने वाली कौन? ये लड़की। तो लड़की डूअर हो गई ना, ये काम को परफॉर्म करती है, डूअर है। और ये किसको करती है? इसका पसंद किधर जाएगा? जिन पर जाकर गिरेगा, ये बेचारे ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल कैसे होगा? मैं कह रहा हूं कि अच्छा एक बात बताओ गुड़िया, तुम कितने लड़कों को पसंद करती हो? तो हाउ मेनी बॉयज Do you like? हाँ जी, अब हमें डू लगाना पड़ेगा। डू यू लाइक। और कितने लड़के तुमको पसंद करते देख लो, हाउ मेनी बॉयज लाइक यू। फर्क देख लीजिए, एक में डू लगाया, एक में डू नहीं लगाया। अब आप फैसला कर लीजिए कि किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया। आपके सामने हाउ मेनी बॉयज इधर भी है और हाउ मेनी बॉयज इधर भी है, देख लीजिए। एक में डू है, एक में डू नहीं है। ऐसा क्यों? जब हम सामने वाले से बोलेंगे ना, तुम कितने लोगों को आमंत्रित करती हो, तो आमंत्रित करने वाली तुम है, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी पीपल डू यू इनवाइट। और कितने लोग तुम्हें आमंत्रित करते हैं। अब ये आमंत्रित करने वाली सामने वाला नहीं है, अब लोग है। कितने लोग तुम्हें आमंत्रित करते हैं? हाउ मेनी पीपल इनवाइट यू। फर्क देख लीजिए। तुम कितने लड़कों को गाली देती हो? हाउ मेनी बॉयज डू यू अब्यूज। और तुम्हें कितने लड़के गाली देते हैं? अब हाउ मेनी बॉयज अब्यूज यू। हाउ मेनी बॉयज अब्यूज यू। ये फर्क है, ये फर्क है, इसको समझिए। सर एक में सब्जेक्ट है और एक में सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। जी, बस यही बात है। तो आपने हु से देख लिया, हाउ मेनी से देख लिया। ये कई बार आपको विच से भी दिखाई देगा। विच, जैसे मुझे बोलना है कौन सा लड़का, तो मैं क्या बोलूंगा? विच बॉय। कौन सी लड़की? विच गर्ल, यू नो। तो अगर मैं ऐसे सवाल करूं, अच्छा यार जैसे यहाँ पर 10 लड़के हैं, तरीका समझ लीजिए, अंग्रेजी आपको आ जाएगी। क्योंकि आज के बाद जब आपकी क्लास होगी तो पता है ना, मैं फीडबैक दूंगा, एक एक चीज नोट करूंगा, एक एक गलतियां।
मैं बस चाहता हूँ कि अगर आपने मुझको ज्वाइन किया है तो आपको फ़र्क लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार यहाँ भी वही हुआ जो पहले कहीं हुआ और हुआ था, वो नहीं होना चाहिए। खैर, तो ये सब लड़के हैं, ओके, और यहाँ एक लड़की है, ओके। अब मुझे बोलना है कि यहाँ पर मैं सवाल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सवाल कर रहा हूँ। मैंने बोला कि एक बात बताओ गुड़िया, इनमें से कौन सा लड़का तुम्हें परेशान करता है? कौन सा लड़का? तो मैं क्या बोलूंगा? विच बॉय, ऐसे बोलूंगा ना। which boy, तो अब क्या होगा, मैं डू डज लगाऊं कि ना लगाऊं, ये इसी का तो खेल है। तो पता है क्या होगा? विच बॉय What? Disturb. डिस्टर्ब्स यू, disturb, ऐसे होगा। और मैं बोलूं कि अच्छा बेटा तुम किस लड़के को डिस्टर्ब करती हो, अब क्या हो जाएगा? Boy, do you which boy, Which boy do you disturb? to disturb you. ना, बस विच बॉय डू यू डिस्टर्ब, यहीं पे कहानी रुक जाएगी। विच बॉय Zero. डू यू डिस्टर्ब, यहाँ पर डू का मतलब ये डू इसलिए लगा क्योंकि डिस्टर्ब करने वाली ये लड़की है और ये बेचारे तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। Yes, और यहाँ विच बॉय, ये बॉय डिस्टर्ब करेगा, ये होने वाली ये लड़की है, ये फर्क है। ठीक है जी, Yes, sir. ऐसे भी होगा और ये yes, sir. वाट से भी हो सकता है। एग्जाम्पल दूं? यस सर। Yes, sir. चलिए, कैसे वाट से होगा, इसको नीचे करते हैं। अब ये ना, ये बारीकी एक्चुअली किताब में नहीं लिखी होती है, दिक्कत ये है। आप कोई भी किताब उठा के Yes, देखो, sir. ऐसा लिखा नहीं होगा, बस यही सिंगुलर प्लूरल और बस ताते ती पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि इस बार लड़का उठाते हैं, ये एक लड़का है। अब ये लड़का कभी खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है। तो मैं इससे सवाल कर रहा हूं, यहां पर मैं हूं और मैं सवाल कर रहा हूं। मैं इससे सवाल कर रहा हूं कि एक बात बता यार, ऐसा क्या है जो तुझे खुश कर देता है और ऐसा क्या है जो तुझे उदास कर देता है? वाट, देखो विच और वाट का फर्क थोड़ा आपको पता है? मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी में सोचते हो तो वाट मतलब भी कौन सा हो सकता है, वाट मतलब भी क्या, मतलब क्या तो होता है ये कौन सा भी हो सकता है। मैं एक फर्क बता दूं, तो विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ये सब डिफरेंस नहीं, जो मेन डिफरेंस है वो देखो। मान लो कि यहाँ पर कितने लोग हैं, ये 3 2 6 लोग हैं। अब मुझे बोलना है कि अच्छा एक बात बता, ये 6 की तरफ इशारा करके इनमें से कौन सा लड़का तुझे परेशान करता है, तब तो हम विच बोलेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि नंबर कितने हैं, अनगिनत है, तब मैं बोलूंगा वाट, ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे परेशान करती है। वाट, वाट का मतलब है कि वो जो किसी ग्रुप में नहीं है, हमें नहीं पता वो 10 है 15 है। आपने शायद नहीं सुना होगा, हम कई बार कहते हैं कि विच कार डू यू लाइक, कई बार कहते हैं व्हाट कार डू यू लाइक, व्हाट कार डू यू वांट टू परचेज। किसी ने सुना है कभी? कुछ तो सुना होगा व्हाट से। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. What color do you like? हाँ जी, व्हाट कलर डू यू लाइक, हम ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो अंग्रेजों के हिसाब से समझिए, व्हाट का मतलब है कि कोई 10 15 कोई ऑप्शन नहीं है, ये दुनिया में जितने कलर है उसमें से मुझे क्या पसंद है तो मैं व्हाट लगाऊंगा। दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं उनमें से मुझे कौन सा पसंद है तो मैं व्हाट बोलूंगा। व्हाट कार डू यू लाइक, व्हाट का मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और विच कार डू यू लाइक, ये 10 15 गाड़ियों की लिस्ट है, बता दे यार तुझे कौन सा पसंद है। ये होता है फर्क। तो अब मुझे कोई लिस्ट नहीं देना है, मैं सीधा इस लड़के से कह रहा हूं कि भाई ऐसा क्या दुनिया में है जो तुझे खुश कर देता है मेरे भाई। तो अब मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा व्हाट, What व्हाट makes मेक्स Makes यू you happy. हैप्पी, Happy. व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, वो खुद ही बता देगा। अब वो आंसर में देगा कैसे, जैसे कि कोई आंसर दो कि कैसी कोई चीज बताओ जो आपको I'm खुश करे। happy. Riding bike. happy. ठीक है, मान लो राइडिंग बाइक, राइडिंग बाइक मेक्स मी हैप्पी। देख लो, तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। हमने तो कोई ऑप्शन नहीं दिया था ना कि राइडिंग बाइक ही में से तुझे चुनना है। वो दुनिया का कोई भी एक आइटम का नाम ले लेगा कि ये चीज मुझको खुश कर देती है। उसी तरीके से ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या है जो तुझे उदास कर देता है, तो व्हाट मेक्स यू सैड। What makes you sad? और बंदा जवाब देगा कि सेपरेशन, यानी कि जुदा होना है, मेक्स मी सैड। Separation makes me sad.
तो कुछ भी नाम ले सकता है जो उसको उदास करे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यार तू बैठा रहता है अचानक से एक्साइटेड हो जाता है। अबे ऐसा क्या है जो तुझे एक्साइटेड कर देता है? व्हाट? या तो हम मेक्स लगाए, नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट। हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट एक्साइट्स। कैसे लिखे? व्हाट एक्साइट्स यू, ये भी हो सकता है। और नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट मेक्स यू एक्साइटेड। व्हाट मेक्स यू एक्साइटेड। जैसे कोई बंदा बैठा है और अचानक उसे एनर्जी आ गई, बोलो ऐसी कौन सी चीज तुझे एनर्जी देती है? तो व्हाट गिव्स यू एनर्जी। व्हाट गिव्स यू एनर्जी? वो कह रहा है कॉम्प्लेन गिव्स मी एनर्जी। तो उसकी मर्जी है, वो जो भी बोले। या उसने बोला रम वर्ड का क्या होता है? गिव्स मी एनर्जी। एनीवेज, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई यूट्यूब पे देख के बोले कि क्या कर रहा है। दूध लिख दूँ? ठीक है। मिल्क गिव्स मी एनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बताना मुझे लगा फर्ज है मेरा। ठीक है जी, चलिए गाइस, ये हो गया। और बाकी जो है, जैसे किसी से पूछना है कि तुम कौन सी मूवी पसंद करते हो, तो हम पहले विच बोलेंगे फिर मूवी बोलेंगे कि विच मूवी डू यू लाइक, ऐसे बात करेंगे। तुम कितने पैसे खर्च करते हो? हाउ मच मनी डू यू स्पेंड। और तुम्हारा भाई कितने पैसे खर्च करता है? हाउ How मच much मनी money does Does your your brother spend? स्पेंड। इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड पर्सन प्लूरल को ले लेता हूं, थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल में आपको बस इतना ख्याल रखना है, आपने माई सन्स कह दिया, ओके। तो अब अगर आप ये कहते हो कि, ऑडियो ऑफ कर दीजिए, कि मेरे बेटे रोज पार्क जाते हैं, तो अब बताओ आप क्या बोलोगे? माई सन्स गो बोलोगे या गोज बोलोगे? फैसला कर लो। Go. Go. तब गो Go to बोलोगे। park. माई सन्स गो टू पार्क डेली। आपको ये नहीं देखना है कि सर मैंने तो माई लगा दिया, माई से मतलब नहीं, इधर सन्स से मतलब है। अगर यहीं पर मैं सन्स को सन कर दूं, सीधा बोल लो कि माई सन, फिर क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। Goes to park. डेली। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा इसका। आपको बोलना है कि यार कुछ लड़के यहाँ रोज आते हैं, तो सम बॉयज, ज्यादा हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो कम होगा। Come सम बॉयज here. कम हेयर डेली। Hmm. और बोला है वह लड़का यहाँ रोज आता है, तो दैट That बॉय boy comes कम्स boy हियर here daily. डेली। ठीक है। मेरे पेरेंट्स पार्क नहीं जाते हैं, माई पेरेंट्स My डोंट या parents डजंट, don't. डोंट गो टू पार्क। Go to park. लेकिन मेरी माता श्री पार्क नहीं जाती है, माई My मदर mother डजंट doesn't go to park. पार्क। हम ऐसे बोलेंगे। सवाल में क्या तुम्हारे बेटे पार्क जाते हैं, तो डू या डज? Do. Do your Do. डू son. योर सन Do your son. गो टू पार्क। Yes. बोलिए। Son है ना? हाँ, सन्स। थैंक यू। और क्या तुम्हारा बेटा, एक बेटा है, तो डज Does योर your son Your son go to park? पार्क। ये फर्क है। क्या वे लड़के यहाँ आते हैं, डू या डज? We like it. Also do. Those boys boy. कम come है। here. Boys come क्या here. वह लड़का यहाँ Come आता here. है? क्या वह लड़का? Does that boy? Does that Does boy? that कम है। come here? ठीक है गाइस, तो ये आपका थ्योरी हो गया कंप्लीट। ये फाइल में सेव करके आपको भेज देता हूँ। अब बाकी आप लोग थोड़ा सा बात करेंगे, तो श्वेता से आप लोग सवाल कीजिए। ओके श्वेता, रेडी? Yes, sir. चलिए पूछिए गाइस आप लोग सवाल, मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। Does your mother take exercise? Yes, my mother takes exercise. At what time does your mother wake up? My mother In the morning? wakes up around 6 a.m. in the morning. एम बोल दिया तो मॉर्निंग मत बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. 6 a.m. Does your mother go to park? Yes, my mother goes to the park. Does your mother go to gym? Yes, my mother goes to the gym. इसमें ना डब्ल्यू Does your father take coffee? एक मिनट, दीपक Yes. आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। वेट दीपक, आप ईयरफोन हटा लो, कुछ तो है।
आवाज रिपीट हो रही है सबकी। ईयरफोन लगाए ओके दीपक, सर। हटा लो। नो सर। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, एक बार रिमूव होके ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए। ओके सर। कोशिश करो। Okay. उसके What do बाद you do at free time? I do I do study at my free time. डू की जरूरत भी नहीं थी, आई स्टडी हो गया, पढ़ती हूँ मैं। I Yes, study. yes, yes, study. Yes. Does your क्लियर है brother सर? Sorry. Are you fat? does your brother study? नहीं। Yes, my brother studies. Who cooks for you? My maid cooks. My maid cooks for me. Does she go to park? She goes to the park daily. Does she go to market? She goes to the market daily. Do you like travel? Does she I like travel. Which place mostly do you like? Um, I like Rajasthan. Which Rajasthan. type of movie do you like? I like romantic movie. So in Rajasthan, do you like to explore safari? Yes. I generally whenever I go to the Rajasthan, I take jungle safari. Does your father take coffee? Yes, my father takes. does your mother purchase vegetables? My mother, yes, my mother purchases vegetables. परचेजेस, परचेजेस। Purchases, yes, sir. Purchases. Mm. Do you go to gym daily? Yes, I go to gym daily. Why don't you cook food? Because I don't cook food because I don't have time. What does your father do? My father was working in BSNL, but right now he is retired. Which type of movie do you like? I like romantic movies. Okay. So Which what's type your of favorite hero? movie do you like most? My favorite hero is Shah Rukh Khan. Yes, Peter, sorry. Okay. Does your mother read newspaper? Yes, my mother reads